نہیں، اگر شارق زہر کھا سکتا ہے تو میں بھی کھا سکتی ہوں۔ وہ دلہن بنی اپنے شوہر کی سیج پر بیٹھی، زہر کی شیشی ہاتھ میں لیے مرنے کو تیار تھی، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اگر وہ زندہ بچ گئی تو اس کے ساتھ کیا ہوگا، کیا اس کا شوہر اسے اپنائے گا؟ باپ تو پہلے ہی لالچ میں اس کی شادی اس کی غیر پسندیدہ شخصیت سے کر چکا تھا، اس کے بعد اگر وہ بچ جاتی تو کہاں جاتی؟ اس سے پہلے کہ ابھی وہ شیشی منہ کو لگاتی، ولی کمرے میں آیا۔ اس طرح اس کو زہر کھاتا دیکھ اس کے ہوش اڑے تھے۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا اور سدرا سے زہر کی شیشی کھینچی اور آؤ دیکھا نہ تھا اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا۔ آخر تم نے اتنی بڑی جرأت کی کیسے؟ تمہیں کیا لگا تم اتنی آسانی سے مر کر اپنی جان چھڑوا لو گی؟ نہیں بی بی، ابھی تو تمہیں اپنے باپ کے جرم کا قرضہ ادا کرنا ہے، اس طرح میں تمہیں مرنے نہیں دے سکتا، تمہیں زندہ رہنا ہے تب تک جب تک میں چاہوں گا۔ اور تبھی ولی نے اس کے چہرے پر کچھ کاغذات مارے تھے۔ سدرا نے بے یقینی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ یہ وہ کاغذات ہیں جو تمہارے باپ نے میرا نقصان کیا، اور ان میں وہ کاغذات بھی ہیں جن میں صاف صاف لکھا ہے کہ تمہارے باپ نے چند پیسوں کے عوض تمہیں بیچ دیا ہے مجھے، اپنے کاروباری فائدے کے لیے تمہاری شادی مجھ سے کروائی ہے۔ سدرا کا سر ایک دم چکرایا تھا۔ اس کا کیا مطلب تھا کہ یہ شادی بھی ایک کھیل تھی؟ مگر اس کے باپ نے ایسا کیا جرم کیا تھا جس کی سزا اسے بھگتنا پڑ رہی تھی؟ ابھی وہ کوئی سوال کرتی تبھی ولی نے اسے بازو سے پکڑا اور دروازے کی طرف دھکیلا۔ آج کے بعد میرے بستر پر بیٹھنے کی غلطی مت کرنا۔ میں یہ بات ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ تمہارا یہ ناپاک وجود میرے بستر پر آئے۔ تم اور تمہارا باپ دونوں ہی ایک جیسے ہو۔ اور ہاں، ایک اور بات، جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی اپنے اس عاشق کو بھول جانا جس کی خاطر تم یہ زہر کھانے لگی تھی، ورنہ مجھے بھلانے میں دیر نہیں لگے گی۔ میں تمہیں دنوں میں اس کی یاد کیا، اس کا عکس تمہارے دماغ کو دل سے نکال دوں گا۔ ولی کا غصہ دیکھ سدرا کانپنے لگی۔ وہ اس وقت کو کوس رہی تھی جب اپنے باپ کی خاطر اس نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ اس کو اس بات کا افسوس تھا کہ وہ شارق کے کہنے پر گھر سے بھاگ کیوں نہیں گئی۔ سدرا آنکھوں میں بے یقینی لیے ولی کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ یہ آنکھیں پھاڑ کے گھور کس کو رہی ہو؟ جاؤ، دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ ولی کا یہ رویہ اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ اس نے آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرتے باتھ روم کا رخ کیا اور اندر بند ہوئی۔ بے آواز روتی خود پر ہوئے ظلم کو یاد کر رہی تھی۔ آخر کیوں اس کے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا؟ اس نے تو آج تک کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کیا تھا، پھر بھی اسے تکلیف اٹھانا پڑ رہی تھی۔ اپنوں کی دی گئی تکلیف غیروں کی دی گئی تکلیف سے 10 گنا بڑی ہوتی ہے۔ اسے آج یہ بات سمجھ آ رہی تھی۔ وہ تو یہ سوچ کر ہلکان ہوئے جا رہی تھی کہ ایسے شخص کے ساتھ ساری زندگی کیسے گزارے گی جس کے دل میں اس کے لیے کوئی نرمی نہیں، کوئی محبت نہیں۔ وہ اپنی آنکھوں کو صاف کرتی، اپنے لباس اور زیورات کو بے دردی سے اتارتی کمرے سے باہر آئی تھی۔ دھلا دھلایا چہرہ، سوجی ہوئی آنکھیں۔ ایک مرتبہ تو ولی بھی سدرا کو دیکھ دنگ رہ گیا تھا۔ خوبصورت چہرہ، تیکھے نقوش، لمبے گھنے بال جو کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ ولی کے تو ہوش اڑ گئے تھے مانو اس وقت۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ سدرا نے خود کو ولی کو دیکھتے پایا تو نظریں چرانے لگی، چہرے پر لال رنگت کھل گئی۔ ولی مبہوت ہوتا اس کو تکتا رہ گیا۔ چہرے پر آئی آوارہ لٹوں کو کان کے پیچھے کرتے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کی دونوں پیالیوں میں بھرا تھا۔ سدرا تو آنکھیں پھاڑے ولی کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ پہلے والا ولی تو کہیں غائب ہو گیا تھا۔ ابھی وہ اس خوش فہمی میں خوش ہونے ہی والی تھی جب ولی نے اپنی زبان کے جوہر دکھاتے اس کی خوشی کو ملیح میٹ کر دیا تھا۔ تم کیا سمجھتی ہو اپنا یہ حسن دکھا کر مجھے ورگلا لوگی؟ آج کے بعد تمہارے یہ بال کبھی کھلے نظر نہ آئے مجھے۔ سدرا کے بالوں کو مٹھی میں قید کرتے اور ہلکا سا کھچاؤ دیتے وہ اسے بہت کچھ باور کرا گیا۔ بالوں پر کھچاؤ محسوس کرتے سدرا کی آنکھوں میں پھر سے نمی آئی تھی۔ وہ اس کو خود سے دور دھکا دیتے واپس ولی اپنے بستر پر آیا اور کمبل چہرے تک اوڑھ کر سونے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ سدرا آنکھوں میں آنسو لیے کپ کپاتے وجود کے ساتھ یہ سوچ رہی تھی کہ اب وہ کہاں سوئے گی، کیونکہ کمرے میں سوائے ایک بیڈ کے اور کوئی جگہ نہ تھی جہاں سویا جا سکتا۔ ہاں، البتہ زمین پر قالین ضرور بچھا تھا، مگر اتنی ٹھنڈ میں بغیر اوپر لحاف لیے وہ نہیں سو سکتی تھی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ ولی کے پاس آئی اور ڈرتے ڈرتے اس کا کندھا ہلایا۔ میں کہاں سوؤں گی؟
यहाँ पर तो कोई और जगह भी नहीं है। वली, जिसके दिलो दिमाग पर अभी भी सिदरा की खूबसूरत छाई थी, सिदरा के इस तरह बुलाने पर एकदम चौंक उठा और चेहरे से कंबल उतार कर उसको बगौर देखने लगा। क्या अब मैं तुम्हें अपने बिस्तर पर अपने साथ सुलाऊं? इतने बुरे भी दिन नहीं आए हैं मेरे, और ना ही तुम्हारी इतनी औकात है। चुपचाप ज़मीन पर सो जाओ, वरना मेरी तरफ से भाड़ में जाओ। चाहे तो कमरे से बाहर चली जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब मुझे उठाने की गलती भी मत करना। मुझे हरगिज़ पसंद नहीं कोई मेरी नींद में खलल पैदा करे। इसीलिए बेहतर यही है कि तुम मेरे कामों में मुदाखलत मत करना और चुपचाप सो जाओ। अब मुझे अपने कमरे में किसी किस्म का शोर शराबा नहीं चाहिए। सिदरा तो बस यही सोच रही थी कि अगर वो बाहर गई तो सब घर वालों की नज़रों में तमाशा बन जाएगा। तो फिर क्या वली इस बात का बदला भी सिदरा से ही लेगा? अभी तो उसे पता नहीं कौन कौन से इम्तहानात से गुजरना था। कमरे से बाहर जाने का मतलब था अपने लिए एक नया इम्तहान खड़ा करना। इसीलिए वो खामोशी से बैठ के पैरों वाली तरफ ज़मीन पर लेट गई। कारपेट बिछा होने के बावजूद भी उसे ज़मीन से ठंडक महसूस हो रही थी, मगर अब क्या किया जा सकता था? दिसंबर की ठंडी यकबस्ता रातों में जहाँ इंसान नंगे पैर भी ज़मीन पर नहीं उतर सकता था, वहाँ सिदरा को ज़मीन पर सोना पड़ रहा था। रात तो जैसे करवटों में गुजर ही गई थी। अलबत्ता वली ने खूब नींद ली थी। अगली सुबह सिदरा सबसे पहले उठी और झट से वॉशरूम में जाकर फ्रेश होने लगी। रात तो वैसे ही जाग कर कटी थी। अब वो मज़ीद ज़मीन पर लेटकर बीमार नहीं होना चाहती थी। तैयार होकर बाहर आई तो वली अभी तक सो रहा था। गहरा सांस लेकर वो कमरे से बाहर निकल गई। सामने सिदरा की सास और ससुर बैठे थे। सास ने हैरत से उसकी तरफ देखा और कहने लगी कि वली कहाँ पर है? आज तुम दोनों की शादी का पहला दिन है। और तुम दोनों को इकट्ठे कमरे से बाहर निकलना चाहिए था। सिदरा की सास ने कुछ करख्त अल्फाज में उसको झिड़का, मगर वो उन्हें क्या बताती कि उनका बेटा उससे शादी करके तो घर में ले आया है उसको, मगर उसे बीवी होने की हैसियत नहीं थी। उसकी हैसियत महज एक बेजान शय की तरह थी। सिदरा अपनी सास को नहीं कह सकती थी, इसलिए खामोशी से कमरे में आ गई। कमरे में आकर देखा तो वली अभी तक सो रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे, वली को जगाए या फिर उसके उठने का इंतज़ार करे। वो इतनी देर खड़ी भी नहीं रह सकती थी, इसलिए बेड के एक तरफ बैठ गई। काफ़ी देर ऐसे ही बैठने के बाद अब तो सिदरा की भी बस हो चुकी थी। शादी की वजह से वो रात भी खाना नहीं खा पाई थी। भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे थे। सिदरा अपनी सोचों में गुम थी जब अचानक वली की आंख खुली। अपनी दूसरी तरफ सिदरा को बैठे देख वो हैरान रह गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रात में कही बात समझ नहीं आई थी क्या? उठो यहाँ से और बाहर दफा हो जाओ। मगर अब तो सिदरा की बस हो चुकी थी। वो एकदम फट पड़ी। बीवी हूँ मैं, तुम्हारी शादी जिस भी हालत में मुझसे हुई हो, कम से कम कुछ तो हकूक़ होंगे मेरे जो तुम्हारी जिम्मेदारी भी हैं। मगर तुम्हें इस सब से क्या मतलब? तुमने तो मुझे दूसरों के रहमो करम पर छोड़ दिया आते ही। मैं यहाँ पर हर एक की बातें सुनने नहीं आई। तुम्हारी माँ और अब्बा की क्या बातचीत हुई है, क्या मसले मसाइल है, मैं नहीं जानती, लेकिन फिर भी मैं सज़ा भुगत रही हूँ। सिदरा की आंखों में आंसू थे। वली तो हैरत से सिदरा को देख रहा था। कल रात तक वो बिल्कुल खामोश थी, मगर एकदम से उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी जो इस तरह बोल रही थी। वली एकदम खामोश हो गया था, मगर वो सिदरा को इतनी ढील नहीं देना चाहता था। बकवास बंद करो अपनी, कब से तुम्हारी फजूल बातें सुन रहा हूँ। मत भूलो कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें बेचा है मुझे अपने जुर्म के बदले में, समझी? अपनी हैसियत तो जानती ही होगी ना कि अब तुम्हारी इस घर में अब हैसियत एक खरीदी हुई लड़की की तरह। इसलिए मेरे साथ ज़्यादा बहस या बदतमीज़ी करने की ज़रूरत नहीं है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सिदरा तो खामोशी से बस ये सोच कर रह गई कि पहले उससे बुरा कौन था। सिदरा ने सोच लिया था कि अब वो किसी की कोई बात नहीं सुनेगी। अपने लिए उसे खुद लड़ना होगा। आखिर उसे कितने नफलों का सवाब होगा कि वो अपने किए की सज़ा भुगते। इस पर वो ये भी नहीं जानती थी कि उसके अब्बा ने कौन सा जुर्म किया था जिसके बदले की सज़ा उसको मिल रही थी। वली का जुल्म दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। वो हर बात पर सिदरा की बेइज्जती कर देता। उसके घर वाले भी उसकी कोई इज्जत नहीं करते थे। सिदरा किचन में काम कर रही थी जब वली घर में दाखिल हुआ। सिदरा कहाँ मर गई हो, जल्दी बाहर आओ। सिदरा जो किचन में काम कर रही थी वली की आवाज़ पर कांप उठी, मगर उसने तहैया कर लिया था कि अब वो किसी से नहीं डरेगी। जब उसने कोई जुर्म किया ही नहीं तो वो सज़ा किस बात की भुगते।
तुम मुझे आराम से भी आवाज़ दे सकते हो, मुलाज़िमा नहीं हूँ मैं तुम्हारी। सिद्रा ने अपने लहजे को मजबूत करते हुए वली को दो टोक जवाब दिया था। वली तो सिद्रा की ज़ुबान देखकर ही हैरान रह गया था। तुम्हें कितनी दफ़ा समझाया है कि मेरे सामने ज़ुबान मत चलाया करो। मुझे ज़्यादा बोलने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं, और तुम तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम अपनी हैसियत। बस बहुत हो गया, अब मैं मज़ीद एक दिन भी तुम्हारा जुल्म बर्दाश्त नहीं करूँगी। मेरी हैसियत क्या है मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। बार बार मुझे बताकर क्या जताना चाहते हो? मैं अब मज़ीद तुम्हारा एक दिन भी जुल्म बर्दाश्त नहीं करूँगी। सारा दिन तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की खिदमतें करती हूँ, उसके बाद भी अगर मैं बुरी हूँ तो बुरी ही सही। छोड़ क्यों नहीं देते हो तुम मुझे? कैसे छोड़ दूँ? तुम्हारे बाप की सज़ा कौन भुगतेगा? तुम मुझे एक ही दफ़ा क्यों नहीं बता देते कि आखिर मेरे बाप ने किया क्या है? इतना तो मैं जानती हूँ कि उन्होंने कारोबार के फ़ायदे के लिए मेरी शादी तुमसे करवा दी है, मगर उनका जुर्म क्या था जिसकी सज़ा मैं भुगत रही हूँ? सुनना चाहती हो कि तुम्हारे बाप ने क्या किया था? तो सुनो। सुनना चाहती हो कि तुम्हारे बाप ने क्या किया था? तो सुनो। तुम्हारे बाप ने मेरे साथ गद्दारी की, मेरे ही काम में मुझे नुकसान पहुंचाया, मेरे दुश्मनों के साथ मिलकर मेरी फैक्ट्री के माल को 2 नंबर साबित करने की कोशिश की और जानबूझकर मेरी फैक्ट्री पर रेड दिलवाई। मगर वो तो खुदा का शुक्र था कि मेरा काम बिल्कुल खालिस था, वरना तुम्हारे बाप ने मेरा नुकसान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और अब तुम्हारा बाप मेरी नज़रों में अच्छा बनने के लिए मुझे फिर से धोखा दे रहा था, लेकिन अब की मर्तबा मैंने तुमसे शादी करके तुम्हारे बाप को सजा दी। अब जब तुम रोकर उनके सामने जाओगी ना तो उनको तकलीफ होगी और मुझे सुकून मिलेगा। सिद्रा वली की बात सुन रोने लगी। इतना कहकर वली को हैरान करने के बाद एक और सवालिया निशान छोड़कर वहाँ से चली गई। जब उसने कहा कि काश तुम हकीकत जानते तो कम से कम मेरे साथ इतना जुल्म ना करते, लेकिन खैर मैं भी अब अपने वक्त का इंतज़ार करूँगी, उस वक्त का इंतज़ार जब तुम्हें तुम्हारे गुनाह का एहसास होगा और तुम रोते हुए मेरे पास आओगे। मगर वली याद रखना, उस वक्त मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। मैं बेकसूर हूँ, इस बात का अंदाज़ा तुम्हें बहुत जल्द हो जाएगा, और जब हकीकत खुलकर तुम्हारे सामने आएगी तो यकीन करो तुम अपनी नज़रें खुद से भी नहीं मिला पाओगे। रोने की वजह से सिद्रा की आंखें लाल अंगारा हो रही थीं। उन आंखों को वली की आंखों में डालकर बात करते सिद्रा की ज़ुबान एक मर्तबा भी नहीं लड़खड़ाई थी, मगर वो जाते जाते वली के लिए एक बहुत बड़ा सवाल ज़रूर छोड़ गई थी। ऐसी कौन सी हकीकत थी जो वली नहीं जानता था? यही सवाल उसके दिमाग में मुसलसल चल रहा था और वो इस सवाल का जवाब जानना चाहता था। तभी वो सिद्रा के पीछे उसके कमरे में गया, मगर कमरे की हालत देख उसके 14 तबक रोशन हो गए। सिद्रा अपने कपड़े निकाले अपने बैग में रख रही थी। वली ये सब देख हैरान हुआ। कहाँ जा रही हो तुम? लड़खड़ाने वाले अंदाज में वली ने सिद्रा से सवाल किया था, मगर सिद्रा ने कोई जवाब नहीं दिया। आंसू साफ करते मुसलसल अपनी चीज़ें समेट रही थी। तभी वली आगे बढ़ा और उसके बाजुओं से पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ किया। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हें इससे क्या मतलब? इस बात से कोई फ़र्क तुम्हें नहीं पड़ना चाहिए कि मैं कहाँ जा रही हूँ और कहाँ नहीं। तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हारी जान छूट रही है मुझसे। बात मेरे बाप की है तो बहुत जल्द हकीकत तुम्हारे सामने आ जाएगी। अभी सिद्रा मुड़ने ही लगी थी जब वली ने बेध्यानी में उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा, जिस पर वो कटी पतंग की तरह उसके सीने से टकराई। बेसाख्ता सिद्रा को वली कमर से ना पकड़ता तो दोनों ज़मीन पोस हो चुके होते। वली तो अपनी जगह साकित हो गया था। सिद्रा उसके सीने से लगी थर थर काँप रही थी, तो दूसरी तरफ वली के दिल की भी धड़कनें बहुत तेज़ थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। ऐसे आज से पहले तो कभी नहीं हुआ था। वली ने अच्छी अच्छी खूबसूरत लड़कियां देखी थी। जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ता था वहाँ फहाशी आम थी, मगर आज सिद्रा का उसका सीने से लगना उसे अजीब एहसास में मुब्तला कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब दोनों को होश आया तो दोनों एक दूसरे से झटका खाकर पीछे हुए। सिद्रा तो नज़रें चुराने लगी, मगर वली की नज़रें अभी भी उसी पर थीं। ना जाने आज की निगाहों में ऐसी क्या बात थी कि सिद्रा को अपना आप सुलगता महसूस हो रहा था। तभी वो अपना दुपट्टा सीधा करते जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई, जबकि वली अभी भी बिल्कुल अपनी जगह साकिन खड़ा था। तुम दोनों तैयार रहना, कल तुम्हारी खाला के बेटे की शादी है, हम सबको वहाँ जाना। समरीन बेगम, वली की अम्मा ने वली और सिद्रा को शादी पर जाने का कहा, जिस पर वली तो खामोश रहा, मगर सिद्रा ने साफ कह दिया कि वो शादी पर नहीं जाएगी।
आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? तुम क्यों शादी पर नहीं जाना चाहती? अम्मा ने कितनी मोहब्बत से तुम्हें शादी पर जाने के लिए कहा और तुम इनकार कर रही। इस इनकार की वजह जान सकता हूँ मैं, और ये भी कि इनकार करने का हक दिया किसने है तुम्हें? कमरे में आते ही वली सिदरा पर चढ़ दौड़ा था। क्या आपको इस बात की शर्मिंदगी नहीं होगी कि आप एक खरीदी हुई लड़की को अपनी बीवी की हैसियत से अपने रिश्तेदारों से मिलाएंगे? इस तरह के जवाब पर वली एकदम हैरान रह गया। उसको इस बात की उम्मीद नहीं थी कि सिदरा उससे इस तरह बात करेगी। वो तो सिदरा की बात पर दांत पीस कर रह गया। बस बहुत हो गया, तुम इस शादी पर जा रही हो, ये मेरा हुक्म है। इसके बाद मैं कोई बहस नहीं सुनूंगा, और वहाँ पर तुम्हें किस हैसियत से जाना है ये मैं तुम्हें बता दूंगा। तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगले रोज़ शादी पर जाने के लिए सिदरा ने काले रंग की साड़ी ज़ेब तन की थी। और कितना टाइम लगेगा तुम्हें? मॉम डैड शादी पर जाने के लिए तैयार हैं, हमें भी साथ ही निकलना है। वली अपनी धुन में सिदरा से बातें करता कमरे में दाखिल हुआ। जब सिदरा की तैयारी देख अपना मुंह खोले रह गया। काले रंग की साड़ी में वो खूबसूरत इतनी लग रही थी, उस पर बैकलेस ब्लाउज़ पहने वो किसी को भी अपनी तरफ मुतवज्जो करने की सलाहियत रखती थी। वली की नज़र उसके बैकलेस ब्लाउज़ पर गई तो गुस्से से तन फन करता उस तक पहुंचा। ये किस तरह का लिबास पहन रखा है तुमने? फौरी तौर पर बदल कर आओ इसको। तुम ये लिबास पहनकर शादी पर नहीं जा सकती। क्यों? क्या बुराई है इस लिबास में? ठीक ही तो है। अब मैं फिर से कपड़े तब्दील नहीं कर रही और ना ही इतना वक्त है। तुम ये लिबास नहीं पहन कर जाओगी। बहुत शौक है तुम्हें अपना आप मर्दों को दिखाने का। अब बस यही इल्ज़ाम रह गया था जो सिदरा को अपनी साथ पर बर्दाश्त करना था। उसने आंखों में आई नमी को पीछे धकेला और कपड़े तब्दील करने चली गई। वली को कुछ अजीब बेचैनी हो रही थी। उसको ये सोच सोच कर कोफ्त हो रही थी कि अब की मर्तबा सिदरा ने खामोशी से कहना कैसे मान लिया। अब की बार उसने कोई जवाब क्यों नहीं दिया। थोड़ी देर बाद सिदरा लाल रंग के जोड़े में बन संवर कर बाहर आई तो वली को अंदाज़ा हुआ कि उसकी बीवी बहुत खूबसूरत है। आज तक उसकी खूबसूरती वली को दिखाई क्यों नहीं दी थी। वली का दिल अजीब अंदाज में धड़क रहा था। तभी वली ने बेसाख्ता तौर पर सिदरा का हाथ थामकर उसको अपनी तरफ खींचा, जो कटी डोर की तरह खींचती उसके सीने से आ लगी। तुम आज इतनी खूबसूरत तुम इतनी खूबसूरत हो। मैंने तो आज तुम्हारी खूबसूरती पर गौर किया। तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती हो? वली ने इस तरह उसकी आंखों में देखा जहाँ अजीब सी तपिश थी। क्योंकि मेरा बाप बहुत खूबसूरत था। अलबत्ता उनके गुजर जाने के बाद किसी ने कभी तारीफ़ की ही नहीं। मैं बिल्कुल अपने बाप पर गई हूँ। वली सिदरा की बात पर बेयकीनी और सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखने लगा। क्या मतलब है इस बात का? वली चौंक उठा था, मगर अब की मर्तबा सिदरा ने कोई जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा था। मगर वली तो कुछ कह ही नहीं पाया। सिदरा वली के पास से गुजर कर जा चुकी थी, मगर वो अपनी जगह पर अभी भी वैसे ही खड़ा था। दिलो दिमाग पर सिर्फ एक ही सवाल था, उनके गुजर जाने के बाद का क्या मतलब था? क्या हुसैन मलिक सिदरा का असल बाप नहीं था? अगर ऐसा हुआ तो वो जीते जी मर जाएगा। यही सब बातें उसके दिमाग में चल रही थी। क्या वाकई हुसैन मलिक सिदरा का बाप नहीं था? क्या वाकई वली ने सिदरा को उसके नाकर्दा गुनाहों की सज़ा दी थी? ये सब सोचते अब वली का सर फटने को था। वो जल्द अज जल्द इस हकीकत का पता लगाना चाहता था। वो जानता था कि कुछ तो सिदरा उसे नहीं बताएगी, मगर अब वो इस बात की हकीकत का पता खुद लगाएगा। यही सोचकर उसने एक नंबर डायल किया था। नंबर उठाते उसने हुक्म सादिर किया, मैं एक आदमी का पता भेज रहा हूँ। मुझे उसकी सारी जानकारी चाहिए। कौन है, कहाँ का रहने वाला है, उसके घर में कौन कौन रहता है, सब कुछ। वली जानता था कि उसके लिए ये सब पता लगवाना कोई मुश्किल बात नहीं, मगर उसे खौफ इस बात का महसूस हो रहा था कि जो कुछ वो सोच रहा है अगर वो हकीकत हुआ तो सिदरा का सामना कैसे करेगा, उसके साथ सारी ज़िंदगी कैसे गुजारेगा। पहले वली को लगता था वो सिदरा के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, क्योंकि वो सिदरा को गुनाहगार समझता था। लेकिन अब जब हकीकत कुछ और नज़र आ रही थी तो वो घबराने लगा था। सिदरा का निकाह वली से हुआ था। वो इस निकाह की हैसियत को जानती थी। उसके बाप ने कारोबारी फ़ायदे के लिए उसका निकाह वली से किया, जबकि वो शारिक से मोहब्बत करती थी। उसे कुछ देर पहले मालूम हुआ था उसकी शादी का सुनकर शारिक जहर खा चुका था। सिदरा भी जहर की शीशी उठा लाई। वो मर जाना चाहती थी। इससे पहले कि वो कुछ करती, कमरे में आते वली ने उसके हाथ से जहर की शीशी लेकर उसके मुंह पे थप्पड़ मारा। वो बेयकीनी से वली को देखने लगी। तुम्हें क्या लगता है अपने बाप के जुर्म का कर्ज उतारे बगैर मैं तुम्हें मरने दूंगा? सिदरा पर नया पहाड़ टूट पड़ा।
यानी ये शादी भी एक खेल है, मगर हकीकत तो बस सिद्रा ही जानती थी। मगर अब हकीकत वली पर भी खुलने वाली थी। शादी पर वली की निगाहें गुमसुम बैठी सिद्रा पर टिकी थी। वो गुमसुम सी गुड़िया आज न जाने क्यों वली को अपने दिल के बहुत करीब लग रही थी। तभी वली की निगाहें एकदम सिद्रा को देखते अपने कुछ कज़न्स पर पड़ी। वली तो आग बबूला हो गया। उसके कज़न मुसलसल सिद्रा को घूर रहे थे। उनका देखना वली के तन बदन में आग लगा गया। वो तनफन करता सिद्रा के पास पहुंचा। उठो यहाँ से और मेरे साथ आकर बैठो। सिद्रा जो अपनी सोचों में गुम थी, वली को अपने सर पर खड़ा देख परेशान हुई। उस पर उसका बोलना बहुत अजीब था। वली देखें, घर पर आप जिस तरह मर्जी मुझसे रवैया इख्तियार करें, मैं आपको कुछ नहीं कहती, मगर यहाँ पर आप मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते। मेरी इज्जत नफ्स को आप कुचल नहीं सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो अब की मर्तबा मुझसे भी किसी अच्छे की उम्मीद मत रखिएगा। आपको जो कहना है आप घर जाकर भी कह सकते हैं। यहाँ तमाशा लगाने की ज़रूरत नहीं। बकवास बंद करो अपनी, और जो कुछ कह रहा हूँ ना चुपचाप सुनो और उठो यहाँ से। चलो मेरे साथ। अब की मर्तबा वली की आवाज़ तो कम थी, लेकिन अभी भी उसने हर लफ्ज़ को चबा चबा कर अदा किया था। अरे वली, भाभी कहीं नहीं जाना चाहती तो क्यों ज़बरदस्ती उठा कर ले जा रहे हो अपने साथ? बैठने दो ना, हम भी कोई भाभी से बातचीत कर लेंगे। इससे पहले कि वली और सिद्रा कोई और मज़ीद बहस करते, वली का एक कज़न वली के पास आया और उसको सिद्रा से ज़बरदस्ती करने पर रोक गया। वली ने कहर बरसाती नज़रों से सिद्रा की तरफ देखा। सिद्रा एकदम गड़बड़ा गई। अब उसको समझ आई कि वली आखिर बार बार जिद क्यों कर रहा था उसको वहाँ से ले जाने के लिए। सिद्रा अपनी जगह से खड़ी हुई तो वली उसका हाथ थामे एक गहरी निगाह अपने कज़न पर डालता उसे अपने साथ वहाँ से ले गया। जब एक बार तुम्हें कोई बात समझा दूँ ना तो तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? कब से वो तुम्हें घूर घूर कर देख रहा था। तुम छोटी बच्ची हो जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था। दिल तो कर रहा था कि उसके साथ साथ तुम्हारे भी मुंह पे 2 थप्पड़ रसीद कर दूं। वली को अभी भी अपने कज़न पर अजीब सा गुस्सा आ रहा था। वो उसी वक्त सिद्रा को लिए अपनी गाड़ी में घर की तरफ भगा लाया। वली की वालिदा और वालिद अभी भी शादी पर मौजूद थे, मगर वली को वहाँ बैठना मुश्किल लग रहा था। तभी वो सिद्रा को अपने साथ घर ले आया। अचानक बाहर तेज़ बारिश शुरू हो चुकी थी। ठंड में भी इजाफा हो चुका था। कुछ ठंड और कुछ वली के गुस्से की वजह से सिद्रा का पूरा वजूद कांप रहा था। वली माथा मसलते कभी इधर जाता तो कभी उधर। एक नज़र सर झुकाए बिस्तर पर बैठती कांपती हुई सिद्रा पर भी डाल लेता, मगर वली का गुस्सा किसी तो कम नहीं हो रहा था। तभी वो गुस्से में सिद्रा के पास आया और उसे पकड़कर अपने मदे मुकाबिल खड़ा किया। आज के बाद तुम इतना बन संवर कर कहीं नहीं जाओगी, समझी तुम? सिद्रा ने झट से हाँ में सर हिला। पहली मर्तबा इस तरह सिद्रा के जल्दी जवाब देने पर वली के चेहरे पर भूली भटकी सी मुस्कुराहट आई। तभी वो एकदम ढीला पड़ा और सिद्रा का चेहरा अपने हाथों के प्यालों में पकड़कर उसके माथे पर मोहब्बत भरा बोसा दिया तो वो एकदम हैरान रह गई। उसे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि सामने खड़ा ये वली वही शख्स है ना। अब कहाँ गई थी उसकी नफ़रत, उसका गुस्सा, उसके बदले लेने की आग? अगली सुबह वली के लिए बहुत मुश्किल साबित होने वाली थी। सुबह सवेरे वली के नंबर पर फ़ोन आने लगा। वो उकताहट भरे अंदाज में अपनी जगह से उठा और फ़ोन पर जगमगाता नंबर देख कुछ देर के लिए गहरी सोच में डूब गया। अपने साथ नज़र पड़ी तो सिद्रा उसके साथ सो रही थी। वो कुछ देर सिद्रा को देखने के बाद फ़ोन पकड़े कमरे से जुड़ी बालकनी में चला गया। हाँ बोलो नवाज़, क्या खबर है? दिल अजीब अंदाज में धड़क रहा था। इतनी ठंड में भी उसके चेहरे पर पसीना आ रहा था। वली की अजीब सी कैफियत हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। अगर हकीकत वही होती जो सिद्रा उसको बताना चाह रही थी तो वो सिद्रा का सामना कैसे करेगा? तभी मुकाबिल ने न जाने वली को क्या कहा कि उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। उसकी आंखों में पहली मर्तबा आंसू आए। वो फ़ोन बंद करते जल्दी से सिद्रा के पास गया और उसको अपने सीने से लगा लिया। उसी तरह जो गहरी नींद में थी, इस उफ्ताद के लिए तैयार नहीं थी। घबरा कर वो उठ बैठी। कुछ देर के लिए तो समझ ही नहीं पाई कि उसके साथ हो क्या रहा है। कुछ देर बाद उसे होश आया तो उसने खुद को वली से दूर किया। सब सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखने लगी। तुम्हें मुझे सच बताना चाहिए था। तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? बेजा बेकसूर होकर भी अपने नाकर्दा गुनाहों की सज़ा भुगतती रहे। एक मर्तबा भी तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि हुसैन मलिक तुम्हारा सगा बाप नहीं है? तुम्हें मुझे हकीकत बताना चाहिए थी। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? वली की बात पर सिद्रा गहरी निगाहों से उसे देख बोली थी, जिसके चेहरे के रंग ही कुछ और थे। मैं आपको सच बता भी देती तब भी आपको मुझ पर यकीन ना आता, इसलिए मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं अपनी बची कुची इज्जत नहीं गंवाना चाहती थी। लेकिन खैर अब तो वक्त गुजर चुका है। अब तो मैं आपके
اب تو میں آپ کے تمام مظالم بھی برداشت کر چکی ہوں، اب پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ آخر میں آپ کو بتاتی ہوئی بھی تو کیا آخر میں آپ کو اب بتاؤں بھی تو کیا؟ تبھی ولی نے اس کا ہاتھ تھاما۔ مجھے آج سب جاننا ہے، حسین ملک کا تم سے رشتہ کیا ہے؟ کیا آپ میری باتوں پر یقین کریں گے یا اب بھی مجھے آپ کی طرف سے مایوس ہونا پڑے گا؟ ولی کی نگاہوں میں شرمندگی سی تھی۔ اس نے سدرا کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے تھام دیے، جیسے اس کو یقین دلانا چاہ رہا ہو کہ اب وہ ولی کی طرف سے مایوس نہیں ہوگی۔ تبھی سدرا نے اسے بتانا شروع کیا۔ سدرا کے ابا اور حسین ملک دونوں بہت گہرے دوست تھے، مگر حسین ملک ہمیشہ سے ہی دلاور صاحب کی جائیداد پر نظر رکھے بیٹھا تھا۔ سدرا بہت چھوٹی تھی جب اکثر وہ اپنی ماں اور اپنے باپ کو آپس میں لڑتا ہوا دیکھتی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ جو کبھی آپس میں نہیں لڑے تھے، اب ایسا کیا ہو گیا تھا کہ دونوں کی تکرار ہی ختم نہیں ہوتی تھی۔ سدرا جب بھی اپنے باپ سے پوچھتی تو وہ اسے یہ کہہ کر ٹال دیتے تھے کہ کوئی خاص بات نہیں، بس تمہاری ماں بدل گئی ہے۔ مگر سدرا کو اب یہ بات سمجھ نہ آتی تھی کہ ماں کیسے بدل گئی۔ ایک روز سدرا جب اسکول سے آئی تو صحن میں ایک چارپائی پڑی تھی جس پر ایک وجود تھا۔ سدرا بہت چھوٹی تھی اس لیے معاملے کو سمجھ نہیں پائی۔ کپڑا ہٹا کر اس شخص کے چہرے سے دیکھا تو اس کے پیارے ابا تھے۔ سدرا بہت روئی تھی، کئی دن تک تو اس کا بخار نہیں اترا، مگر آہستہ آہستہ وہ بڑی ہونے لگی تو اس کو بات سمجھ آ گئی کہ جو اس دنیا میں ایک دفعہ آیا ہے اس کو واپس بھی جانا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے اور بھی بہت سی باتیں سمجھ آنے لگی۔ اس کی والدہ اور حسین ملک کا آپس میں بہت ملنا جلنا تھا۔ جب بھی اس طرح اپنی ماں سے وہ پوچھتی کہ حسین ملک گھر پر کیوں آتا ہے تو وہ یہ بات کہہ کر ٹال دیتی کہ تمہارے ابا کے جانے کے بعد انہوں نے ہی تو ہمارا خیال رکھا ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو آج ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے۔ لیکن سدرا تو کچھ اور ہی سمجھ رہی تھی۔ ایک روز وہی ہوا جس کا سدرا کو ڈر تھا۔ آخر سدرا کی ماں اس کے پاس آئی اور بولی کہ میں حسین ملک سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ سدرا کو پہلے تو یقین نہ آیا کہ اس کے باپ کی جگہ کوئی اور لے گا۔ تبھی سدرا کی ماں اس کے سامنے رونے لگی اور بولی، تمہارے ابا کو بھلانا میرے لیے بہت مشکل ہے، مگر اب یادوں کے سہارے تو زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ حسین ملک مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، تمہارے ابا کے بہت اچھے دوست بھی رہے ہیں، جان پہچان بھی ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے اتنا وقت گزرا ہے، اگر تمہاری اجازت ہو تو کیا ہم دونوں شادی کر سکتے ہیں؟ پھر تمہیں بھی باپ مل جائے گا اور مجھے بھی شوہر۔ سدرا اپنی ماں سے پوچھتی رہی کہ اس کے باپ کو آخر ہوا کیا تھا، اس کے باپ کی موت کس طرح ہوئی، مگر اس کی ماں ہمیشہ یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ ان کو دل کا دورہ پڑا۔ لیکن دل کا دورہ کس وجہ سے پڑا تھا یہ اس طرح اس کو ابھی تک پتہ نہیں چل سکا تھا۔ حسین ملک نے سدرا کی ماں کے ساتھ شادی کر لی۔ اب وہ بھی سدرا کے گھر میں رہنے لگے۔ شروع میں تو سدرا حسین ملک سے دور رہتی، مگر آہستہ آہستہ اس کی ماں نے سدرا اور حسین ملک کی دوستی کروا دی۔ آہستہ آہستہ وہ سمجھدار ہوتی جا رہی تھی، ہر بات کو سمجھنے لگی تھی۔ تبھی اس کو اندازہ ہوا کہ حسین ملک اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا۔ حسین ملک جب گھر پر ہوتا سدرا اپنے کمرے سے باہر نہ نکلتی، اور کئی مرتبہ حسین ملک نے اس کی ماں سے اس بات کی شکایت بھی کی تھی۔ سدرا کی ماں اس کو جھڑک دیتی اور سمجھاتی کہ وہ اپنی ماں کو یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ ان کی بیٹی کی عزت خطرے میں ہے۔ سدرا خاموشی سے اپنی ماں کی ڈانٹ برداشت کر لیتی اور کرتی وہی جو اس کا دل چاہتا تھا۔ سدرا جوان ہوئی تو حسین ملک کا ہر وقت اس پر نظر رکھنا، بہانے سے اس کو ہاتھ لگانا اسے زہر لگتا تھا۔ اب تو وہ اپنی ماں کو بھی دو ٹوک الفاظ میں جواب دے دیا کرتی تھی۔ اور ایک روز حسین ملک اور سدرا کی ماں کمرے میں موجود باتیں کر رہے تھے۔ سدرا کسی کام سے کچن کی طرف جا رہی تھی جب اپنی ماں اور حسین ملک کی باتیں سن کر دنگ رہ گئی۔ جب اس نے حسین ملک کو کہتے سنا، مت بھولو کہ تم بھی اس سب میں شامل تھی، تم بھی تو مجھ سے محبت کرتی تھی، اور پھر تمہارے شوہر کا مرنا بھی تو ضروری تھا، ورنہ ہم دونوں ایک کیسے ہوتے؟ رہی بات تمہارے شوہر کی جائیداد کی، تو جو تمہارا ہے وہ سب میرا بھی ہے، یہی بات ہم دونوں کے بیچ میں ہوئی تھی نا، تو اب مکر کیوں رہی ہو؟ سدرا تو حیران رہ گئی یہ سن کر کہ اس کے باپ کی موت میں اس کی سگی ماں اور اس کے ابا کے بہترین دوست کا ہاتھ ہے۔ وہ جلدی سے کمرے میں چلی گئی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ حسین ملک شروع سے ہی بہت لالچی تھا، ہر چیز میں لالچ دکھاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا سدرا کے گھر میں اس کے ساتھ رہنا بہت مشکل تھا۔ سدرا 25 سال کی ہوئی تو حسین ملک نے گھر پر عجیب شور شرابہ برپا کیا تھا کہ سدرا کی شادی کر دی جائے۔ سدرا کی ماں بھی اس بات پر رضامند تھی، مگر سدرا وہ گھر چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ جانتی تھی جس روز وہ اس گھر کو چھوڑ گئی نا تو حسین ملک اس کی ماں کو بھی مار دے گا اور ساری جائیداد پر قبضہ بھی کر لے گا۔ سدرا بڑی ہو چکی تھی، سمجھدار بھی تھی، اس لیے اس نے اپنے باپ کے وکیل سے بات کرنے کا سوچا۔
उसने बाप के वकील से बात भी की और घर के सारे कागजात अपनी माँ की अलमारी में से छुप कर निकाले और वकील के हवाले कर दिए। वकील साहब, खुदा के लिए मेरे माँ बाप की जायदाद को बचा लें। मेरी माँ और सौतेला बाप दोनों मेरी जायदाद के पीछे पड़े हैं। उन दोनों ने मिलकर मेरे सगे बाप को तो मार डाला, अब वो इस जायदाद पर भी कब्जा करना चाहते हैं। सिद्रा के वकील ने जब कागजात देखे तो उसने सिद्रा को बताया कि कागजात के हिसाब से जब सिद्रा 18 की हो जाएगी, जायदाद खुद ब खुद उसके नाम मुंतकिल हो जाएगी। सिद्रा को हैरत का झटका लगा। ये कैसे मुमकिन था कि माँ के होते अब्बा ने सारी जायदाद उसके नाम कर दी, और शायद ये सब कुछ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही कर लिया था। शायद सिद्रा के अब्बा को जल्द ही हकीकत का इल्म हो गया था। वो जानते थे कि अनकरीब उनकी मौत वाक़या हो जाएगी, इसीलिए उन्होंने सारी जायदाद अपने मरने के पहले ही सिद्रा के नाम कर दी। जब सिद्रा को इस बात का इल्म हुआ तो उसको इस बात पर भी रोना आया कि उस वक्त सिद्रा इतनी छोटी थी कि अपने बाप का साथ नहीं दे सकती थी, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि उसके सौतेले बाप और उसकी माँ ने जिस मकसद के लिए इतना सब कुछ किया वो मकसद कभी पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन ये बात अभी सिद्रा राज ही रखना चाहती थी। सिद्रा की माँ ने उसका रिश्ता तलाश करना शुरू किया। तभी हुसैन मलिक को वली का रिश्ता घर पर पेश किया, ये कहकर कि अगर वली से सिद्रा की शादी हो जाती है तो उससे हुसैन मलिक को अपने कारोबार में बहुत मुनाफा होगा, फ़ायदा होगा। सिद्रा अपनी माँ को नहीं खोना चाहती थी, इसलिए उसने रिश्ते के लिए हामी तो भर ली, मगर नहीं जानती थी कि इस रिश्ते के पीछे कौन सा बड़ा खेल चल रहा है। वली ने सिद्रा की सारी बात सुनी। अब सिद्रा की आंखों में आंसू थे। सिद्रा ने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ इतना बड़ा खेल खेला जाएगा। सोचा तो वली ने भी नहीं था कि एक आम सी दिखने वाली लड़की अपने अंदर इतने बड़े बड़े राज लिए बैठी होगी। सिद्रा के कहे के मुताबिक वली को वाकई खुद से घिन आ रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो ज़मीन खुले और उसमें दफन हो जाए, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसको इतनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। वली हकीकत में अब सिद्रा से नज़रें नहीं मिला पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो सिद्रा से किस तरह माफ़ी मांगे। वो तो वाकई बेकसूर थी और अपने नाकर्दा गुनाहों की सज़ा भुगत रही थी। हुसैन मलिक ने जो उसके साथ किया वो वली से ज़्यादा बदतर था। वो तो हमेशा से जुल्म सहती रही थी, मगर वली ने उस पर मज़ीद जुल्म करके अपना नाम भी उन्हीं गुनाहगारों में लिखवा लिया था। वली ने एक नज़र सिद्रा की तरफ देखा तो वो अभी भी खामोशी से ज़मीन को घूर रही थी। अब तो शायद वो आदी हो चुकी थी जुल्म बर्दाश्त कर करके। यही वजह थी शायद सिद्रा बहुत कम वली को जवाब देती थी, वरना उसकी बातों को खामोशी से बर्दाश्त ही कर लेती थी। सिद्रा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। सिद्रा ने सवालिया निगाहों से वली की तरफ देखा, मगर वली में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि अपनी गलती का एतराफ़ कर सकता। उसे कुछ वक्त चाहिए था। तभी कुछ देर सोचने के बाद उसने ना में सर हिला। कुछ नहीं, इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। पीछे से सिद्रा के चेहरे पर एक ज़ख्मी मुस्कुराहट आई। वो जानती थी कि वली पर यह वक्त ज़रूर आएगा, बस वो इस वक्त का इंतज़ार कर रही थी कि कब वली के सामने हकीकत खुले। ये बात हकीकत थी कि वो शारिक से मोहब्बत करती थी, मगर जब से उसकी शादी वली से हुई थी उसने खुद को वली का बना लिया। वो हर वक्त अपने रिश्ते को बचाने का सोचती। अब भी वो यही सोच रही थी कि वली का अगला रद्द अमल क्या होगा। क्या अभी भी वो उसके साथ इसी तरह ज़िंदगी गुजारेगा या फिर इसमें कोई बेहतरी आएगी। आज सुबह से सिद्रा की हालत कुछ ख़राब थी। वली उसका बुझा बुझा चेहरा देख रहा था, मगर समझ नहीं आ रही थी कि उसे क्या हुआ। हिचकिचाहट की वजह से पूछ भी नहीं रहा था। कमरे में वली गया तो सिद्रा बाथरूम से आई। उसका रंग सर्द पीला था और तभी सिद्रा एकदम बेहोश होकर ज़मीन पर गिरी। सिद्रा, सिद्रा क्या हुआ? वली जो चोर निगाहों से सिद्रा को देख रहा था वो एकदम उसको बेहोश होता देख भागकर उसके पास गया था। उसे अपनी गोद में उठाए लिए डॉक्टर के पास भागा। अंदर सिद्रा का मुआयना चल रहा था और वली की धड़कनें तेज़ हो रही थी। वली को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह सिद्रा को सही सलामत अपनी नज़रों के सामने ले आए। थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर कमरे से निकली तो वली जल्दी से उनके पास गया। डॉक्टर, मेरी बीवी को क्या हुआ है? वो ठीक तो है ना? क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? वली की बेताबी देखते डॉक्टर मुस्कुराने लगी। मुबारक हो मिस्टर वली, आपकी बीवी उम्मीद से। वली का मुंह खुले का खुला रह गया। जब उसे इस बात का इल्म हुआ उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी खुशखबरी उसे मिली है। उसने तो कभी सोचा भी ना था कि ये मकाम भी कभी आएगा। वली ने गहरा सांस लिया, चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए डॉक्टर से सिद्रा की बाबत पूछने लगा था। डॉक्टर, क्या मैं अपनी बीवी से मिल सकता हूँ? जी जी, वो बिल्कुल ठीक है, आप जाइए और जाकर मिल लीजिए। कमज़ोरी की वजह से उनको चक्कर आ गया
कमज़ोरी की वजह से उन्हें चक्कर आ गया। बाकी कुछ दवाइयाँ लिख कर देती हूँ, ये दवाइयाँ मुसलसल उनको देनी है। वली कमरे में गया तो सिदरा निढाल सी बिस्तर पर लेटी थी, चेहरे की रंगत पीली पड़ चुकी थी। वली सिदरा के सिरहाने खड़ा उसको देख रहा था, जो बेहोशी की वजह से अभी भी निढाल थी। वली ने आंखों में आई नमी को पीछे धकेला और सिदरा के सर पर हाथ रखा, जिससे सिदरा की आंख खुल गई। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। वली के सर पर धमाका हुआ था। वो तो हवन्नक बना सिदरा की बात को समझने की कोशिश कर रहा था। क्यों नहीं चाहिए? लोग इस रहमत को, इस नेमत को तरसते हैं और तुम खुदा की नाशुक्री कर रही हो। सिदरा के चेहरे पर जख्मी मुस्कुराहट है। जिस तरह मैं खरीदी हुई लाई गई थी, इस तरह मेरी औलाद की भी हैसियत उतनी ही होगी। मैंने तो अपने ऊपर जुल्म बर्दाश्त कर लिया, मगर अपनी औलाद के लिए जुल्म बर्दाश्त नहीं करूँगी। इसलिए मैं नहीं चाहती कि यह बच्चा दुनिया में आए। वली ने जब्त से आंखें बंद की। सिदरा, मैं जानता हूँ मैंने तुम पर बहुत जुल्म किए, लेकिन क्या मुझे माफ़ी नहीं मिल सकती? क्या मेरी इतनी भी हैसियत नहीं तुम्हारी ज़िंदगी में? मैं तुम्हारा शोहर हूँ। जानता हूँ मैं एक अच्छा शोहर साबित नहीं हुआ, मगर यकीन रखो मैं एक अच्छा बाप ज़रूर साबित हूँगा। मुझसे जो गलतियाँ हुई, मैं उन सब के लिए तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, और तुमसे माफ़ी मांगते मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं हो रही महसूस, ना ही मेरी अना आड़े आ रही है। खुदा के लिए मुझे एक मौका तो दो। क्या मैं एक मौके का भी हकदार नहीं हूँ? सिदरा ने अपनी आंखों में आए आंसुओं को साफ किया और वली की तरफ देखने लगी। मैं भी इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती हूँ, मगर एकदम से मेरे लिए सब कुछ या बिल्कुल ठीक हो जाना मुमकिन बात नहीं। लेकिन मैं इस रिश्ते को एक मौका ज़रूर दूंगी। वक्त के साथ साथ उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तब तक आप मुझ पर किसी किस्म का बोझ नहीं डालेंगे और ना ही कोई जल्दबाजी करेंगे। वली जानता था कि यह वक्त गुजारना उसके लिए बहुत मुश्किल है। वो जज्बाती इंसान हर काम जल्दी जल्दी करने का कायल था, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। यहाँ उसके अहम रिश्ते का मामला था। वली और सिदरा घर आ चुके थे। सिदरा ने अपनी अना को एक तरफ रखते अपने रिश्ते को बेहतर अंदाज में निभाने की भरपूर कोशिश की, तो दूसरी तरफ वली भी सिदरा का बहुत ख्याल रखता। उसके खाने पीने से लेकर उसके आराम तक का ख्याल खुद रखता। वली को खुदा ने बेटा और एक बेटी से नवाजा। जुड़वां बच्चों को देखते वली और सिदरा बहुत खुश थे। दूसरी तरफ सिदरा ने दिलो जान से वली को माफ़ कर दिया। कभी कभार सिदरा को पुराना वक्त याद आता तो वो अफसरदा हो जाती, मगर आने वाले वक्त का सोचकर, गुजरते वक्त का सोच वो अपना गम भूल जाती थी। अपने दोनों बच्चों को अपनी नज़रों के सामने देखते वो अपने हर गम को नज़रअंदाज कर देती थी, और इस सब में वली सिदरा का भरपूर साथ दे रहा था। गाहे बगाहे उससे माफ़ी भी मांगता रहता और उसके लिए तोहफे तहफ़ भी लाता रहता। सिदरा उसे कह चुकी थी कि उसने उसे माफ़ कर दिया, मगर वली अपने सुकून के लिए सिदरा से अक्सर माफ़ी मांग लेता। इस तरह दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे।